जीवन ठहराव और गति दोनों के ही बीच का संतुलन है। नमस्कार, दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम कैंपस में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वहाँ के फैकल्टी से, वहाँ के स्टूडेंट से किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं। और आज हम मौजूद हैं रांची के ICFI यूनिवर्सिटी में, जहाँ के फैकल्टी और स्टूडेंट से हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे जीवन के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना कठिन होता है, ये हम सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। और वर्क लाइफ बैलेंस की क्या क्या चुनौतियां होती हैं, क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे लाइफस्टाइल पर पड़ते हैं, और फिजिकल हेल्थ और हमारे मेंटल हेल्थ को ये किस तरीके से प्रभावित करता है, इन सभी पहलुओं पर आज हम बात करेंगे यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट से। तो चलिए चलते हैं उनके पास और बात करते हैं स्टूडेंट से। वर्क लाइफ बैलेंस से आप क्या समझती हैं? Work-life balance, according to me, is an environment where an individual can pay equal attention to their personal growth and their professional performance and skills. A work-life balance is an equilibrium between personal and professional life. Also, we need to know that there has to be a balance between whatever we do in our personal field and our professional field, so they don't overlap or overwhelm each other's responsibility likewise. We need to focus on our personal goals, on our professional skills, on our hobbies, and self-care too is important for it. Work-life balance in itself, the name suggests that there has to be a healthy balance between work and life. So this is all what I understand from work-life balance. Life is a canvas painted with a vibrant color of joy, sorrow, and adventure. Every brush stroke represents a movement, a choice, a learn lesson. We are born with a blank page, unwritten and unscripted. Our journey weaves a tapestry of experiences, relationship, and memories. Life's beauty lies in unpredictability, trust, and terms shape us, testing our resilience and courage. We face storms, but we also witness rainbows. We taste darkness, but we also feel warmth. Every scar tells a story. Every smile hides a struggle. Every tear reveals strength. We are not defined by our failures or successes. We are defined by our willingness to rise, to learn, and to tone. Life's preciousness lies in its brevity. Moments slip away like a grains and saints. Embrace every second, cherish every breath, forgive freely, love unconditionally. So how to overcome your stress? So firstly, you can do the regular meditation, yoga, proper healthy diet, regular daily sleep for 8 hours. And how I used to do my stress relief, I used to study books which make me happy, and another thing, listening a song. Work-life balance. We should maintain a balance between our work and our personal life. Don't mix the things, and we should take rest and maintain our day. First of all, we should plan our day. Don't take stress. And secondly, start saying no to extra work. Don't take responsibility more. Whenever you feel you are stressed, just spend time with your friends or family, and start talking to your friends. Spend time with the nature. Just don't take stress more and start saying no to extra work. आपके अकॉर्डिंग वर्क लाइफ बैलेंस के चैलेंजेस क्या क्या हैं? सो वर्क लाइफ बैलेंस में चैलेंजेस आते हैं हमें। एज अ स्टूडेंट वी हैव अ पीयर प्रेशर, हमें पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है
how to manage our studies and how to manage our personal life with our families and friends, and how to overcome that, and मतलब हमें बहुत ज़्यादा stress रहती है पढ़ाई की, academics and everything, and also we have a responsibility of our families कि हमें उन मतलब provide करनी है in future our families, and helping hands बनने हैं हमारी family के, तो उसको कैसे मैनेज करना है. सो हम उसे ऐसे मैनेज करते हैं कि हम वी डू सम एक्सरसाइजेज, हम एक्सरसाइज करते हैं घर पे, और म्यूज़िक सुनते हैं, नेचर में वॉक करते हैं, जो हमें थोड़ा हेल्प करता है पीयर प्रेशर को कम करने में, एंड इट हेल्प्स टू बैलेंस वर्क लाइफ एज अ स्टूडेंट. Work life for advocates is a bit different, as we do not have 9 to 5 jobs. So many of them are also working at homes, and most of the work is actually done at home rather than being in courts or any other tribunal or any such legal any such legal institutions. So for us to manage stress is manage stress is very important. So for this, we can spend more time with the families, we can focus more on our hobbies, and we should try to not to overburden ourselves from the legal works or any cases, or we should always any cases or any other works. So this is that could be a better way to relieve from the stress which we have during work. वर्क लाइफ बैलेंस के चैलेंजेस ये है कि जो हम लोग वर्क को और लाइफ को दोनों को अलग अलग सोचते हैं, पर जो वर्क है वो लाइफ का ही एक पार्ट है, और लाइफ में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक वर्क भी होता है. पर लोगों को लगता है कि सिर्फ वर्क वर्क वर्क, पर वर्क सिर्फ अकेला काम नहीं होता है. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें बैलेंस करके चलना पड़ता है, और वर्क एक पार्ट है लाइफ का. और हम लोग को वर्क लाइफ को बैलेंस करते समय बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. जैसे कि हमारे लाइफ में फैमिली प्रेशर्स होते हैं, वर्क का प्रेशर अलग होता है, फ्रेंड्स का प्रेशर अलग होता है, और फ्यूचर का प्रेशर अलग होता है. पहली बात तो कि फ्यूचर का प्रेशर लेना ही नहीं चाहिए. अगर हम लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं तो हम लोग को प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं. लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और प्रेशर लेने लगते हैं. पर अगर हम लोग फ्यूचर के बारे में नहीं सोच के प्रेजेंट में जो हम लोग कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा हम लोग अपने वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं. और हम लोग को प्रायोरिटी सेट करना चाहिए, अगर हम लोग प्रायोरिटी सेट करेंगे तो हम लोग को क्या हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग फोकस करेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर काम करेंगे तो हमारा जो वर्क लाइफ है वो नॉर्मली बैलेंस हो जाएगा. मेरे अकॉर्डिंग वर्क लाइफ बैलेंस जो है स्टूडेंट के लाइफ में सबसे अधिक जो देखा जाता है वो फैमिली प्रॉब्लम है. फैमिली प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा हर एक स्टूडेंट के लाइफ में बहुत सारे ऐसे फैमिली प्रॉब्लम होती है जिससे फेस करते हुए ही स्टूडेंट को उसको स्टडी करना पड़ता है. दूसरा है कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम लगभग सभी फैमिली में देखी जाती है, जिसको फेस करते हुए ही स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को और अपनी इसको जारी करता है. और सबसे अधिक जो अभी देखा जाता है वो है कि पॉपुलेशन जो इंडिया में जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसके अनुसार देखा जाता है कि पॉपुलेशन के बढ़ने से जॉब के लिए और बेरोजगारी की समस्या जो है बढ़ते जा रही है. इसीलिए बेरोजगारी की वजह से बहुत सारे युवा जो है वो सुसाइड कर रहे हैं. ये जो है स्टूडेंट के लाइफ में सबसे अधिक स्ट्रेस देखा जा रहा है. वर्क लाइफ बैलेंस करने को लेकर के लोग इस कदर स्ट्रेस ले रहे हैं कि लोगों की फिजिकल हेल्थ तो हार्म हो ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके मेंटल पीस भी डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो कहीं ना कहीं सुसाइडल केसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं और उसकी टेंडेंसी बढ़ गई है. तो इससे आप क्या समझ रहे हैं?
So firstly, we need to understand that work-life balance includes work as well as life. So we cannot differentiate these things, as work is a part of life. So in order to live our life, we need to work. So we cannot skip. Work can be anything. It can be outside the house also. It can be inside the house also. So as we can see in today's world, there is a very much chaos about the stress and work and everything. So in order to manage all these things, firstly we need to set boundaries in our personal as well as in our professional life. We need to prioritize our tasks, that what we need to do first, what we need to prioritize and what we need not to. We should just avoid the things which are not much useful for us or something. And the last and the major thing is that we need to do time management, because time management is the major element in our life. So we should manage our time according to the work we have. And I think that if we manage our time properly, then we will not have much pressure or stress about anything. जैसे कि हमने सुना कि स्ट्रेस के कारण फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अफेक्ट होते हैं और उससे सुसाइड होता है. तो बिफोर कि कोई भी स्ट्रेस हो, उसको हम इंटेलेक्चुअल वे में उसको पहले ओवरकम करें. लाइक अगर पढ़ाई का है, लाइक आई एम इन स्टडी, तो हम पढ़ाई का है तो पहले हम खुद को कि हम स्ट्रेस क्यों लें. अगर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हम उस चीज़ का स्ट्रेस क्यों लें, स्ट्रेस को उतना हावी क्यों होने दें. खुद को हम अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर हम खुद को मेंटेन कर रहे हैं, तो हम क्यों स्ट्रेस लें. सेकंड थिंग, स्ट्रेस का कारण बहुत कुछ हो सकता है. लाइक हम फिज़िकली हेल्दी नहीं हैं, वो भी स्ट्रेस का एक कारण हो सकता है. तो खुद को हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज लाइक प्राणायाम और बॉडी एक्सरसाइजेज, फिजिकल एक्सरसाइजेज में बहुत इन्वॉल्व होना चाहिए. एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तो हमें बॉडी एक्सरसाइज एंड 10 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करने ही चाहिए. सेकेंड थिंग कि हम पॉजिटिव थिंकिंग रखें. पॉजिटिव थिंकिंग लाइक अगर कुछ ऐसा हमारे साथ हो रहा है अंदर ही अंदर, तो हम शेयर करें अपने बड़े लोगों से, पेरेंट्स से, फैकल्टीज से, आवर एडवाइजर्स. जो हमारा कार्यालय है या फिर जो कुछ भी हम काम करते हैं, उसकी वजह से काफ़ी तनाव का सामना हमें करना पड़ता है. बहुत सारे कारण हैं इसके, लेकिन एक मुख्य कारण हमें जो देखने को मिलता है कि जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा प्रेशराइज़ कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को. या फिर आप जैसे अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हैं तो बहुत सारे प्रेशर्स आपको फील करने पड़ते हैं. लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आपको प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच अंतर पता करना आना चाहिए. वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसे एज अ प्रेशर मत लो. आप ये देखो ना कि आपका वो काम है, और आप उस काम को अगर आप पूरी शिद्दत के साथ करोगे ना, तो आपको वो सब थॉट्स नहीं आएंगे. और एट ऑल सुसाइड कभी भी किसी चीज़ का भी रास्ता नहीं होता है. हर चीज़ होता है वो टेम्पररी होता है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ एक समय के बाद आपको प्रभावित नहीं करेगा. आपको ज़रूरत है उस चीज़ को थोड़ा पॉजिटिवली लें. आप ऐसे कार्य करें जिनसे आप प्यार करते हैं, या फिर आप अपने कार्य को प्यार करें. तो जैसे कि आज की खबरों में हमने बहुत सुना है कि सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं स्टूडेंट्स में. तो ये बेसिकली कोई रास्ता नहीं है कि आपको कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप चल जाओ सुसाइड कर लो, इससे कुछ नहीं होने वाला है. तो आपको ये समझना होगा कि वर्क लाइफ का प्रेशर और पर्सनल लाइफ को अलग करना है. बाउंड्रीज सेट करनी होती है आपको कि मेरा पर्सनल लाइफ का टाइम मेरा पर्सनल लाइफ में रहेगा, जो मेरी वर्क लाइफ का टाइम है वो सिर्फ वर्क लाइफ में रहेगा. दोनों को मिक्सअप कभी भी नहीं करना है. अगर काम में आपका प्रेशर है, हालांकि सबको रहता है, हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग को भी प्रेशर है कि एग्ज़ाम में हम लोग को पास करना, अच्छे नंबर लाने हैं, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं. बट इसका सोल्यूशन सुसाइड नहीं है कि आप अंडर प्रेशर आके सुसाइड कर लो. आप सोल्यूशंस का हल ढूंढो. आपको नहीं समझ आ रहा है, आप बात करो, शेयर करो. सबसे बातें करने से प्रॉब्लम्स का हल निकलता है. बट ये आप कभी मत करना कि आप जाके सुसाइड कर लो, क्योंकि आपके पीछे भी फैमिलीज़ है. आपको अपने मम्मी पापा के बारे में भी सोचना है. सो इसलिए कभी सुसाइड सोल्यूशन नहीं होता है. तो बेसिकली आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं, खाने पीने में अच्छे से खाना पीना कर सकते हैं, अपने वर्क लाइफ में पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए. कोई भी इशू है तो वो डिस्कस कीजिए, डिस्कस करके उस प्रॉब्लम का हल निकालिए. वर्क
लाइफ बैलेंस अचीव करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या उसके सोल्यूशन हो सकते हैं? मैम ने क्वेश्चन किया कि वर्क लाइफ को अचीव करने के लिए क्या किया जा सकता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि मैंने अपने स्टडी करने के लिए मैंने जब मेरा स्ट्रेस होता है तो मैं सॉन्ग सुनती हूँ, सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करती हूँ और फिर कभी मन किया तो किचन का काम भी कर लेती हूँ। और फिर अगर ज़्यादा प्रेशर होता है तो अपने फैमिली और रिलेशंस में बात कर लेती हूँ। स्ट्रेस एक प्रकार का हम लोग पे, पहले के ज़माने में कोई स्ट्रेस को जानता नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि स्ट्रेस एक बैक्टीरिया बन चुका है कि हाँ हर एक बच्चे पे स्ट्रेस है। मतलब छोटे छोटे बच्चे कोई भी स्ट्रेस लेते हैं कि हाँ कैसे क्या करना है, अपने फ्यूचर कैसे बनाना है, कैरियर में क्या करना है। वर्क को अचीव करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग का मेंटल स्टेट अच्छा नहीं होता है, मेंटल इशू होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम होता नहीं, लेकिन हम लोग को लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने प्रॉब्लम जो है उससे जानें, फिर उसके बाद आप देखिए कि उस प्रॉब्लम के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। आप अपने मेंटर, मार्गदर्शक से बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अपने दोस्त, अपने सीनियर्स से बात कर सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत का बात ये होता है कि हम लोग जो भी प्रॉब्लम आता है तो उसके बारे में सोचते रहते हैं। हम लोग को पता है कि मानव एक सोशल एनिमल है, तो सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि हम लोग अपने आप में शेयर नहीं करते, जो कि हम लोग का स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फिर क्यों अपने तक अपने प्रॉब्लम को रखना चाहिए? क्यों नहीं अपना प्रॉब्लम को बाकी तक शेयर करें और उसका जो भी सॉल्यूशन हो सकता है उसे ज्ञात करें। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक पहला है कि हम अपने काम पर्सनल प्रोफेशनल लाइन को अलग रखेंगे, टाइम को मैनेज करेंगे। किसी भी काम को करने के लिए हम उतना ही टाइम लेंगे जितना की ज़रूरत हो, और कोई भी काम को करने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं हम। और फिर हम अगर हम काम कर रहे हैं तो उसका स्ट्रेस भी जाहिर है कि ज़्यादा होगा, लेकिन हम अपने स्ट्रेस को ना अपने काम पे असर नहीं करने देंगे, बीच बीच में ब्रेक लेते रहेंगे ताकि उसे हमारा फोकस और प्रोडक्टिविटी ना बिगड़े, और अपने काम को फिर लगातार करने की कोशिश करेंगे। First of all, it's very important that you must know about your worth. There is always someone who loves you, who takes cares about you and loves you. It's very important that you love them back. And first of all, the second thing is you have to your vision must be very clear. Whoever the successful persons are, their visions are very clear, and you should be very clear that what you have to do it and what you don't have to do it. It's very important for you to realize the things and act like a adult and act like a adult one, and it's very important. And thirdly, the most important facts that it's important for us to know is that the visions, that whatever you must know about the planning, plotting the things out, and you must work on that. It will happen that according to whatever you're planning, plotting, it must not be working on the future as according to your, but it's very important that you must clear that you need to be the patient enough in your life so that you could achieve it for the once at a while. मेरे साईया रे, साईया रे, साचा बोले ना झूठा माहिया रे, मेरे साईया रे, साईया रे, झूठी माया का झूठा है जिया रे। किस दिशा जाऊं, कित मैं बसेरा पाऊं, तू जो मांगे संभल जाऊं, साईया रे। अब किस दिशा जाऊं, तू जो मांगे संभल जाऊं, अब किस दिशा पाऊं, साईया रे, मेरे साईया रे, साईया रे।
इक्फा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से वर्क लाइफ बैलेंस पर बात की, जिस पर उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने विचार रखे। इस दौरान उन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस की चुनौतियां गिनाई, साथ ही व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाने के दौरान किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है और किस तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं, इस पर भी चर्चा की। साथ ही एज अ स्टूडेंट उन्हें किस तरह के प्रेशर से डील करना पड़ता है, इसका भी जिक्र किया। अब हम यहाँ से चलेंगे फैकल्टीज के पास और बात करेंगे उनसे वर्क लाइफ बैलेंस पर और जानेंगे कि वो अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में किस तरह से संतुलन बनाते हैं। I'm happy to tell you the ICFA University Jharkhand has the least fee structure in whole of Jharkhand, and therefore the type of students that we get are from the lower strata, but then if we have those quality students in any way and the rigor that we give, the output is going to be excellent. So there is a real good balance which is being practiced, and I'm sure every youth has that potential. You have to have your three things in mind: your own passion, your own imagination as to where you want to be tomorrow, and then your commitment for the two. If you make your pick, PIC, passion, imagination and commitment, I think sky is the limit that you can reach. This is an AI age, robotics age, web development age, computer age, information age and data age, where whatever you want to do, excellence is possible because knowledge is also freely available. Practice sessions are available in the university, and one can achieve whatever he dreams today. You will achieve what you want is the message for the youth. Work-life balance is a balance between the workplace and the priorities of individual in his personal life. That is called work-life balance. The teacher and the student, they must design such curriculum as per the UGC norms. Now we have the Indian Knowledge System, IKS, employability skills. So we must empower our students so that they feel good to perform in their examinations. If they perform in the examination, then the performance is good, then they feel good. So for that, we have different mechanisms. The pedagogy is designed in such a way that student will not pressurize, feel pressure to perform in the classroom as well as outside. मेरा मानना है कि जब आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं तो आप दो सर्किल के रूप में इसको समझते हैं। बहुत जगह आप ये देखते हैं कि वर्क और लाइफ है और उसमें एक इंटरसेक्शन दिखाया गया है। मेरे हिसाब से ये इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। लाइफ जो है वो एक बड़ा सर्किल है और उसका एक पार्ट है वर्क। ये इसमें इंटरसेक्शन या जो बैलेंस करने की बात है वो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ हम लोग इसको समझने की ज़रूरत है। समझने की ये ज़रूरत है कि वर्क एक पार्ट है हमारे लाइफ का। लाइफ के हमारे और भी कंपोनेंट्स हैं, फैमिली है, पर्सनल लाइफ है, हॉबीज़ है, इंटरेस्ट है। तो ये छोटे छोटे सर्किल मिल के एक बड़ा सर्किल बनता है जिसे हम लाइफ कहते हैं। अब सवाल है कि इससे हम कैसे बच सकते हैं और क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक तो जो है वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि आप फोकस रखिए। जब हम ऑफिस में हैं तो हम सिर्फ वर्क के बारे में सोचेंगे, जब हम घर चले जाते हैं तो हम अपने फैमिली के बारे में सोचेंगे। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। और बहुत सारे जो आज के समय में जो टेक्नोलॉजी का प्रभाव है, हमारा जो स्क्रीन टाइम है, उसको हमें कम करने की ज़रूरत है। हमारा मोबाइल फ़ोन से ये बताते हुए रहता है कि आज आपने कितने स्क्रीन टाइम को देखा। एक टर्म भी आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, डूम स्क्रोलिंग, राइट। आवर्स और आवर्स हम जो है वो अपने स्क्रीन पे देखते रहते हैं और 5-6 घंटे उसी में लग जाते हैं। तो प्रॉपर स्लीप ज़रूरी है, माइंडफुलनेस ज़रूरी है। पर्पस लाइफ का हमारा क्या है? हमारा लाइफ का बेसिकली 3 पर्पस है, दैट इज़ हैप्पीनेस, पीस और फ्रीडम। तो अगर आप इन 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे कि हमारा फोकस होना चाहिए फ्रीडम पे, पीस पे और अल्टीमेट हैप्पीनेस पे, तो वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीज़ जो है वो आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको कहीं फील हो रहा है दैट यू आर
गोइंग इनटू लाइंग और डिप्रेशन, कोई प्रॉब्लम है आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ कनेक्ट विथ योर पेरेंट्स, विथ योर एल्डर्स, विथ योर टीचर्स। ये तो मैं एज अ टीचर, एज अ डीन स्टूडेंट वेलफेयर अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस दी। और मैं उन सारे महिलाओं को अब संबोधन करना चाहूँगी जो वर्किंग हैं। ये हमारे लिए भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि हम किस तरह से अपने कार्य क्षेत्र और अपने घर के क्षेत्र को मैनेज करें। घर पे बच्चे हैं, किचन भी हमें संभालना है, ऑफिस भी हमें संभालना है। अपने लिए कुछ वक्त निकालें, मोबाइल नहीं, मोबाइल से दूर, लैपटॉप से दूर, डिजिटलाइजेशन से दूर। दैट इज़ द बेस्ट वे how we can, as an individual, as a female, as a children, we can tackle with this problems called stress, and we can manage the life and work simultaneously. Give time to yourself, spend time with nature, and speak to yourself. कभी आपने देखा है कि कोई एनिमल डिप्रेशन में बैठा है? कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के बीच में है, वो अपने 10 मित्रों के साथ घूमते, कभी अकेले नहीं रहते, वो झुंड में रहते हैं। सो ट्राई टू सोशलाइज, बी इन नेचर, दैट इज द बेस्ट थेरेपी टू हैव द वर्क लाइफ बैलेंस इन योर लाइफ। प्रॉब्लम्स को हमें अपने वर्क को स्टैक के मोड में नहीं रखना चाहिए। वी डोंट नीड टू पेंडिंग में नहीं रखना है। हमें अपने काम को डेली बेसिस पे, जो हमारे पास जितनी इफिशियंसी है उसको सॉल्व करते हुए अपने काम को डेली बेसिस पे कंप्लीट कर दें, एंड फिर उसके बाद हम अपने घर के लिए मूव कर जाएं, क्योंकि घर जाने के बाद भी वहाँ बहुत चैलेंजेस हैं जिसको हमें सॉल्व करना होता है, और हमें शायद अपने ऑफिस की चीज़ों को वहाँ रखना पॉसिबल नहीं है कि हम कितने प्रेशर को झेल के यहाँ तक आ रहे हैं। तो घर के प्रेशर के, घर के काम के प्रेशर को भी हमें वैसे ही टैकल करना है। और मुझे जहाँ तक लगता है प्रेशर वर्ड यहाँ नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि काम भी हम वही कर रहे हैं जिसमें हम खुश हैं, जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, और घर हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए हमें सदैव ही तत्पर रहना है। तो प्रेशर कहीं नहीं है, बजाय इसके कि हम अपने काम को एक सही समय पे कंप्लीट कर दें, और अगर कोई काम रह जाता है तो उसको हम नेक्स्ट डे के लिए उसी तरीके से प्लान कर लें कि हम आए और उसको खत्म कर दें। मेरा सुझाव रहेगा कि आप अपने सारे पाठ्यक्रम को, जो भी आपने आज पढ़ा है, उसको आज ही खत्म कर दीजिए। घर जाने के बाद उसका नोट्स, उसका असाइनमेंट रेडी कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, ताकि एग्जाम के समय आप फ्री रहें। इक्फा यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स से हमने वर्क लाइफ बैलेंस पर बात की, जिससे ये सामने निकल कर आया कि आजकल अधिकतर लोग वर्क लाइफ बैलेंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर नहीं बल्कि प्रेशर के तौर पर लेने लगे हैं, जो उन्हें फिजिकली तो हार्म कर ही रहा है, साथ ही साथ उनके मेंटल हेल्थ पर भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। और ऐसे में डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी मानसिक बीमारियां उन्हें घेर ले रही हैं। और फिजिकल हेल्थ जैसे प्रॉब्लम्स तो विजिबल होते हैं, मगर मेंटल हेल्थ जैसे प्रॉब्लम्स और मेंटल पीस जब डिस्ट्रॉय होता है तो ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि सामने वाला इंसान कितना परेशान है। और कई बार कुछ लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि कई बार वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो ऐसे में वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करने के लिए सबसे पहले तो उन्हें वर्कोहॉलिक होने से बचना चाहिए और सेल्फ केयर करना चाहिए। साथ ही योगा और एक्सरसाइज कर फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देने के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी और सबसे अहम, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, जीविका कमाने में तुम इतने व्यस्त मत हो जाओ कि जीवन जीना ही भूल जाओ। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमें दीजिए इजाज़त। कैंपस के अगले अंक में फिर मिलेंगे आपसे किसी अलग यूनिवर्सिटी में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।